दूसरा कोरिन्थियों 2:16। Thanks be to God who in Christ always leads us in triumph procession and who was hearts in every place with fragrance and love for doings. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम जो जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। So we were looking at what is triumphal procession. हम ये देख रहे थे जय का उत्सव का मतलब क्या है। Yeah, tell me what is जय का उत्सव का मतलब क्या है, आप लोग अभी हमको बताना है। when you went to the break it went or it is there. आप लोग थोड़ा सा टी और ब्रेक लेके गया, वो गया, वो मतलब जो सीख के गया वो गया और मन में है हम देखेंगे, पता ना। Celebration of what? Celebration of victory. Celebration of victory. Yeah, but I said for 1 hour. एक घंटा समझाया, एक सेकंड Little more details. इसका मतलब क्या है समझाना? Little more details are required. Another banana. Yeah. Okay. In one line again. It is a procession led by the army general. ये ऐसा एक उत्सव है, ऐसा एक बातें है जो सेनाओं का अधिपति ने करता है। Who has defeated another country or another army. उन्होंने दूसरा सेनाधिपति या दूसरा सेनाओं को हरा के आता है। Right? You are right. You are saying right. Okay. And I said at the last when we were going for break, I said one more thing that even the defeated armies general and warriors, the powerful soldiers will be brought to the home country. आप लोग आज ब्रेक में जाने से पहले भी बताया था, जिसको हराया है वो सेनाधिपति और वहाँ जितना कर्मचारी या सेना लोग हैं उनको भी बांध कर ये दूसरी जगह पे मतलब जो लोग विजय पाके आया वो लेके आता है। Yeah, let me tell you another story. Do you know the story of David and Goliath? दाऊद और गोलियत का कहानी पता है? Yes. In that, David is before David comes for several days, Goliath is shouting, "Who is there? Come and fight with me." दाऊद आने से बहुत दिनों से पहले गोलियत का कहानी ऐसा है, बहुत चिल्ला रहा था, कौन आएगा मुझे हराने के लिए? Fight with me. If you win, I will be your slave. वो बता रहा था मुझसे लड़ो और युद्ध में लड़ो, अगर आप मुझे हराया तो मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। Remember that, na, the battle. वो युद्ध की कहानी पता है ना? And David will come. He will throw the stone. Goliath will fall down. दाऊद आएगा, पत्थर लेगा, पत्थर से मारेगा, गोलियत गिर जाएगा। उसके बाद what happens? उसके बाद देना प्रवाद happen. And they took the head. Remember that? Then people will start singing, David killed, Saul killed 10,000, David killed 10,000. गोलियत का सिर काटते हुए जब दाऊद ने आया, लोग गाने लगा, शाऊल 10,000 को मारा, दाऊद ने। You understand? Remember that? So this mighty warrior Goliath was making fear for all people is now brought as a. You understand? तो सामर्थ गोलियत ने लोगों को डरा रहा था, अभी उसको कैसा लेके आ रहा है? You understand? That is a celebration. वो है उत्सव। Just like that, the Roman Empire, it was the defeated army general will be tied and brought to the capital, and ultimately on the sacrifice he will be burned. जो सेनाधिपति को हराया है उसको भी ऐसे ही बांध के इधर दूसरे देश पे इनका देश पे राजधानी में लेके आएगा। Right? Why is Paul bringing that example or metaphor? वो उदाहरण पौलुस ने क्यों इधर लेके आया? You look at the words again. You keep that in your mind and read this verse again. ये सब कहानी मन में रखते हुए वो वचनों को अच्छे से पढ़ना। But thanks be to God, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ who leads us in triumphal procession. जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। So who is leading the procession? कौन इस सफर को अगुवाई कौन कर रहा है? Read again. अच्छे से पढ़ो। Read again. अच्छे से पढ़ो। Don't say assumptions. Read again. Thanks be to God. परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो मसीह में मतलब who is the person? Paul. जो कौन? Read again. Read again. परमेश्वर का धन्यवाद हो। कौन अगुवाई कर रहे हैं? Yes, God. Yes, God. God is the army
चलाने वाला सेनाधिपति परमेश्वर ही है। The victorious army general is God himself. सबसे सफल या जय वाला सेनाधिपति कौन है? परमेश्वर ही है। And Paul is saying he is being led. पर ये पौलुस बताना चाहता है उसको भी अगुवाई देते हुए लेके आ रहा है। तो पौलुस कहाँ है? पौलुस का मतलब वेयर इज पॉल? In the procession, where is Apostle Paul? वो जो बड़ा झुंड में और जो सफर के झुंड में प्रेरित पौलुस कहाँ है? कहाँ है? मैंने सोचा, I thought that Paul is the one who is leading the procession. हमने सोचा होगा पौलुस ने सबको अगुवाई दे रहा था। I thought I was the one who will win the victory. मैंने सोचा मैं ही होगा सब सफल पाने वाला व्यक्ति। But here this verse is saying Paul is being led. इधर बताता है वचन पौलुस को भी किसी ने अगुवाई करके लेके आ रहे हैं। Meaning Paul is comparing himself to the defeated army general. वहाँ पौलुस ने खुद को वो हार मानकर आए हुए सेनापति है उनकी समान तुलना किया है। How is it, my dear brothers? ऐसा कैसे होगा मेरे भाइयों? He is saying, I am the defeated army general who is being dragged. पौलुस बताना चाहता है वो जो हार मानकर आए हुए सेनापति है वो मैं हूँ। Super apostle, बड़े से बड़ा प्रेरित, they said that we are the one who is victorious, we are in the forefront. बड़े बड़े प्रेरित लोग बोलने लगा हम ही है वो जय पाने वाला प्रेरित लोग और हमें सबके सामने चलने वाला है। And Paul said that is not the kind of ministry. पौलुस ने बताना चाहता है सेवकाई करना ऐसा नहीं है। Apostles are the prisoners who will be dragged. प्रेरित लोग वो जो लोग हैं जिसको बंधुआई में बांध के लेके आता है। The whole people will look and say, this man, why he is like this? लोग हमको देखकर बोलते हैं अरे ये जो इंसान ये क्यों ऐसा है? Humiliation, the greatest humiliation in one's life. उनका जीवन में सबसे निराश और सबसे अनादर की बातें चल रहा है। That is the comparison Paul is making here. वो है सेवक के बारे में पौलुस इधर बताता है। Now let me tell you 2-3 things from this thing. इसमें से आप लोगों को कुछ बातें मैंने सिखाना The चाहता हूँ। first thing that we need to understand, इसमें से हम ये चीज पहले समझने का जरूरत है। the question we need to ask is, are you conquered by God's love? परमेश्वर की प्यार में और प्यार से आप लोग विजय पाया है नहीं? This Jai Utsav, this example is used to say that Paul is saying, yes, there was a battle, and in the battle I lost, and because I lost, I have been dragged as a slave. पौलुस ये बताना चाहता है एक बड़ा युद्ध हुआ, ये युद्ध में मुझको गिराया था, मैं हार मान चुका हूँ और प्यार के युद्ध में से मुझको हरा कर मुझको पकड़ के लेके आया है। So the question is, are you conquered by the grace of God, the love of God? क्या आप और मैं परमेश्वर की प्यार और दया की वजह से और दया की युद्ध में हार गया है नहीं? That is the thing that he is emphasizing here. यही बातें पौलुस ने इधर हमसे बताना He चाहता is है। talking about his conversion experience. वो ऐसा बताना चाहता है वो कैसा उनके जीवन बदल गया। You remember the story of Acts 9? प्रेरितों का अध्याय 9 का कहानी आप लोगों He को was on the horse. वो घोड़े पर बैठ रहा था। He is going to destroy the people. वो लोगों को नाश करने के लिए He जा is रहा going to था। destroy the Christians who are in the city of Damascus. दमस्कस में जीने वाला मसीह लोगों को गिराने के लिए जा He रहा had the था। authority from the priest. वो वहाँ का बड़ा महापुरोहित से अधिकार लेके जा रहा He था। himself was a prominent teacher. वो ये खुद एक टीचिंग अध्यापक था। So he is on the horse and going towards Damascus. घोड़े पे बैठकर दमस्कस की ओर जा रहा था। On the way he had an encounter with the Lord. सफर के बीच में परमेश्वर से मुलाकात हुआ। You remember the story, light brighter than the sun. वहाँ लिखा है एक बड़ा रोशनी चमकी करके लिखा He है। fell down from his horse. वो घोड़े से नीचे गिर गया। His eyes became blind. उनका आंखें बंद हो गया और अंधा हो गया। He sat without food and water for 3 days. 3 दिन बिना पानी और आहार और चाव खाना वो बैठ रहा था। He says about this even in the 2 Timothy that we took. No need to read now. In the 2 Timothy he says like this. 2 तिमोथी में भी पौलुस यही कहानी दोहराता He है। says the grace of God came in search of me. वो बताना चाहता है परमेश्वर का और ग्रेस और अनुग्रह मेरे लिए मुझे ढूंढ कर आया। I was before a blasphemer. मैंने ऐसा एक ठट्ठा करने वाला और ऐसा वाला एक बात में था। And he says that I was the chief of the sinners.
मैं वो बताया, ये भी बताया मैंने पाप करने वाला लोगों का बड़ा नेता था। Yeah, I was the chief sinner. सबसे बड़ा पापी मैं। You understand? That is the encounter Paul had. वही बात है पौलुस के जीवन में हुआ, वो मुलाकात हुआ। The question is, सवाल ये है, did you have that kind of an encounter? ऐसा वाला एक मुलाकात आप और परमेश्वर के बीच में हुआ या नहीं? I am not asking about did you raise your hand? आप हाथ उठाया नहीं, ये पूछता नहीं हूँ। I don't know how is it in the north in Kerala. ऋषिकेपेटो उधर पाया, उधर पाया मतलब क्या है? हाथ उठा. I raise my hand. In Kerala, the people that leader will ask, did you receive salvation, and they will raise their hands. So raise your hands and repeat. From today, Lord Jesus is my savior. बहुत लगता है ना? आपके जगह पे वैसा होता है ना? पादरी बोलता है जितने लोग उधर पाया हाथ उठाना। आज उधर किसको जाएगा? हाँ मुझे चाहिए। क्या बोलना है? यीशु मसीह आज से मेरा। That is good to say, but before saying that you should have an encounter with the Lord. ऐसा बोलना अच्छा है, फिर भी ये बोलने से पहले परमेश्वर से एक मुलाकात का जरूरत है। You should see the holiness of और God. परमेश्वर का पवित्रता को देखने का The जरूरत है। most holy one. सबसे पवित्र व्यक्ति है। And people like us who are in the flesh are sinful. जो लोग हमारे जैसा है, मांस में और इस शरीर में और पाप में। And we have to cry before the Lord, Lord, I am the chief of sinners and I need the Savior. हम परमेश्वर के सामने पुकारते हुए रोते हुए बोलना है, प्रभु मैंने सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझे देखना। That experience, the conviction of sin and the trust upon Jesus Christ. वो जो मुलाकात और वो जो समझने का और माइंड और वो दिमाग हमारा अंदर होना है। That is the first question that I want to ask you today. वही था पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछना Yeah, I know था। some of you are saying in your mind, आप मुझे ये भी पता है आप लोग मन के अंदर ये सोच रहा है, Pastor, this is not convention. पादरी ये कन्वेंशन नहीं है, This is Bible college. ये बाइबल कॉलेज है। Why should you preach about born again experience and gospel in the Bible college? आप क्यों नया सिरे से जन्म लेने का कहानी इधर आकर क्यों प्रचार कर रहा है? Because in seminary also we have people who are not born again. बात ये है जो लोग नया जन्म बिना पाते हुए भी बाइबल कॉलेज के अंदर आ जाता है। I don't know about you, your personal experience, I don't know, but you must question yourself and find out for yourself. आपके बारे में मुझे पता नहीं, फिर भी खुद को सवाल डाल के परीक्षा करके देखना मैं कहाँ हूँ। When I was studying in Kottayam, जब मैंने सामने कोटे में पढ़ रहा था, I had a roommate from Odisha. मेरा एक रूममेट था उड़ीसा से। Odisha से कोई है? कोई नहीं है। I had a roommate from Odisha. उड़ीसा से एक रूममेट था मेरा, He was not baptized. वो बपतिस्मा नहीं लिया था। So the Pentecostal spirit in me woke up. जो पेंटिकोस्ट का आत्मा होता है वो मेरा अंदर से उठ के आ So गया। we were into serious argument every day. हम दोनों वाद विवाद में था हर दिन। After the class, after the library, from 10 o'clock till 12 o'clock every day there will be argument. लाइब्रेरी के बाद रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उनसे यही वाद विवाद चलते So I थे। want to convince him that baptism is most essential and you must get baptized. मैंने उनका उनका जीवन में ये छाप के देना चाहता था, बपतिस्मा ही सबसे बड़ा काम है तो वो करना ही है। Yeah, you must take baptism, brother. This is my point. मैंने ये बताना चाहता था बपतिस्मा तो जरूर लेना, वो सबसे बड़ा काम। Finally one day अंत में एक दिन he confessed. उन्होंने पश्चाताप हुआ। He is saying me, I want to take baptism, उन्होंने पश्चाताप होकर बोला मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, but I will not take baptism now. मैं अभी बपतिस्मा नहीं लेना चाहता हूँ। Yes, but why? मैंने पूछा क्यों? Because if I take baptism, I cannot do any mistake. हाँ, उन्होंने बोला अगर मैं अभी बपतिस्मा लिया तो फिर पाप मैं कैसे कर सकता So हूँ? let me do all the things that I can do, and last before getting into ministry, I will baptize and वो go. बोला मैं कुछ तो करने के लिए मेरा मन की सोच में मैंने जीऊंगा, सब पाप करने के बाद सेवकाई में जाने से पहले बपतिस्मा लेके चले You see the mindset of people in the seminary. सेमिनारी का बाइबल कॉलेज का अंदर वाले लोगों का दिमाग आप लोग समझना। My question is very serious this morning. आपके लिए सवाल बहुत अच्छा बहुत मुख्य रूप से मैं पूछना चाहता हूँ। Ministry is impossible without this encounter. ये जो परमेश्वर से मुलाकात के बिना सेवकाई करना बहुत If मुश्किल you है। have not seen your own sinfulness and have not trusted in Jesus, you can never save anyone. अगर आप खुद की पाप को नहीं देखा और खुद के बारे में नहीं समझा और खुद को परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा तो आप दूसरों को कैसे बोल सकता है? There is a story of Isaiah in the Old Testament. यशायाह का एक कहानी पुराना नियम में है। You may have studied from Sharin sir. शरीर सर आप लोगों को जरूर सिखाया है। Especially Isaiah 6, you will surely take. Isaiah chapter 6.
यशायाह चैप्टर अध्याय 6 आप लोगों को सार लिया होगा। He's seeing a vision. उन्होंने एक दर्शन देख रहा है। The Lord is sitting on a high exalted throne. परमेश्वर ने एक बड़ा सिंहासन पर बैठ रहा है। याद है? याद है? Seeing that vision, he is saying, "Oh, I am a sinful, wretched man." और दर्शन देखते हुए यशायाह ने बताया, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं गिर चुका हूँ। Till then he was telling that people have sinned, people have gone astray, but when he saw the Lord, he is saying, "I have sinned." वो मुलाकात के पहले वो बोल रहा था, लोग पाप किया, लोग पापों में गिराया करके, फिर भी जब वो परमेश्वर को देखा, वो बोलने लगा, मैं पापी हूँ, मैं गिर चुका हूँ। That experience Isaiah had, we see a similar experience in the life of Paul as well. वो ऐसे आका जैसा एक मुलाकात पौलुस के जीवन में भी हुआ और हमारे जीवन में भी होना है। We need to be trusting in Jesus for our salvation, understanding our own sinfulness. हमारा उद्धार के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए खुद की पापों को हम देखने की जरूरत है। But then from that experience of Acts chapter 9 on the road to Damascus, और दमस्कस की सफर में और रास्ता पर उनको जो मिले हुए अनुभव के द्वारा as life goes ahead, आगे उनके जीवन चलने का समय, Acts chapter 13 there is another incident. प्रेरितों का काम अध्याय 13 में दूसरा एक कहानी है। When Paul and other elders are sitting and praying, जब पौलुस और बड़े-बड़े लोग उनके साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे he हैं, had a calling for ministry. उनको सेवकाई का एक बुलाहट आया। याद है? याद है? Do you know? Do you remember that incident? When people are praying, the Lord is speaking to separate Paul and Barnabas for ministry. जब लोग प्रार्थना कर रहा था बरनबास से और पौलुस से, परमेश्वर बातें कर रहा है अकेला। That's why he says, whenever he writes the epistle, he says, "I have been called to be an apostle." इसलिए कभी-कभी वो जब मतलब उसका हर पत्र में वो लिखा, मुझे प्रेरित बनने का बुलाहट मिला है। Called into ministry. हाँ, बोला है मुझे प्रेरित बनने के लिए बुलाया है। That is what we see here. Paul is saying, "I have been defeated, I have been called." इसलिए पौलुस इधर ये मतलब हमको देता है जो वचन में मुझे बुलाया, मुझे हरा के लेके आया। I'll add one more thing with that. उसमें और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। For ministry, yes, conversion is important, calling is important. There also must be an empowerment by the Spirit of God. सेवकाई में आपका बुलाहट बहुत अच्छा है और आपकी जीवन की वो सामर्थ्य पाना, वो सब कुछ बातें अच्छा है, फिर भी सामर्थ्य से होकर परमेश्वर की शक्ति से और उनकी मुलाकात से आगे चलना भी बहुत मुख्य The है। disciples stayed with Jesus for 3.5 years. 3 और 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चले लोग था। Jesus died, rose again, and is going back to heaven. यीशु मसीह ने मर गया, फिर जी उठा स्वर्गराज में जाने से पहले। What did he say to the disciples? चलो लोगों से क्या बोला? मैं तुम्हारे घर बनाएंगे। घर के बारे में अभी नहीं बात हो रही है। अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ के बारे में। Do not leave the city of Jerusalem. यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। Wait for the promise of the Holy Spirit. वहाँ लिखा है यरूशलेम शहर को मत छोड़ना, इंतजार में बैठना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए। Acts 1:8, the famous verse says like this, "But when you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will become my witness." प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में बातें लिखा है, जब तुम लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएगा तो दुनिया का अंत तक मेरा गवाह बनेगा। So if you need to be a minister, what must happen? You must be empowered by the Spirit of अगर God. आपको भी एक सेवक बनना है तो क्या होना है? पवित्र आत्मा से एक दर्शन और एक मुलाकात आपसे होना है। In Luke 24, there is a verse that I always like. लूका अध्याय 24 में एक वचन है मैं बहुत पसंद करता हूँ। It's the same thing as in Acts, but the words are different. और प्रेरितों का काम में जो वचन है सेम एक ही समान दिखाई देता है, फिर भी शब्दों को फर्क है। 24 verse 49. लूका सुसमाचार 24 का 49 पढ़िए। Look into that verse. पर उसके सब ज्ञान पहचान और जो स्त्रियां गलील की उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। 49, 24. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है और उसके तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। What it says? Until you have been clothed with power from on high. What is it? हिंदी में ऐसा लिखा है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। वहाँ लिखा है ये जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का कपड़ा, इंग्लिश में लिखा है, जब मैं तुम लोगों को पहनाऊंगा तब से लेकर जाऊंगा। Just like you are wearing a shirt or a t-shirt, you have to be clothed in the power of the Holy Spirit. जैसा शर्ट और टी शर्ट हम पहनते हैं उसकी समान
आप लोग परमेश्वर की सामर्थ को पहनना है। Second question is, are you filled with the power of the Holy Spirit? दूसरी सवाल ये है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है या नहीं? Ministry is an impossible task. सेवकाई एक असफल काम है। It is impossible with our own strength. इसलिए मैं बोलने का मतलब ये था, हमारा खुद की सोच में उसका हम कुछ नहीं कर सकता है। With our strength, with our resources, we can do nothing in ministry. हमारा चीजों के द्वारा और हमारे ताकत के द्वारा हम सेवकाई में कुछ नहीं कर सकता We है। need the empowerment of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने की जरूरत You है। have to wait upon the Lord to be filled before stepping into ministry. सेवकाई में जाने से पहले पवित्र आत्मा इंतजार में बैठकर पवित्र आत्मा को हम पाने की जरूरत है। So the first thing that I am telling is that being conquered by the grace of God. पहला मैंने बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह या ग्रेस से आप लोग हार मानना है। The one who was going away from the Lord is being defeated and brought back. जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर जा रहा था, उनको हरा के वापस खींच के परमेश्वर लेके आया। That was Paul's story. वही था पौलुस की कहानी। What is your story? आपकी कहानी कैसे होगा? Did you have an encounter with him? क्या आपको परमेश्वर से मुलाकात है या नहीं? Are you sure in your heart that he has called me to be a minister? आप हृदय से दृढ़ निश्चय है क्या मुझको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है? Have you experienced the power of the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा का सामर्थ अनुभव किया है? Let me tell you my story. मैं मेरी कहानी बताना चाहता हूँ। When I'm telling about Paul's story, I am reminded of my story. जब पौलुस की कहानी बता रहा था, मैं खुद की कहानी के बारे में सोचा। Now I have different places for preaching. जब मैंने अलग अलग जगह से प्रचार के लिए जाता हूँ, Just like our minister sir was now saying, people will tell that yeah, he preaches in YouTube, his message in the TV, this kind of things people are saying. जैसा मैंने सर का परिचय दिया, यूट्यूब में सर को देख सकता है, टीवी में आता है करके मैंने बोला, But I was not like this. मैंने ऐसा नहीं था। Now also I am not very, because of the podium, I am very comfortable. ये जो पोडियम है, स्टेज इधर है, इसलिए मैं बहुत ऐसा अच्छा जगह पे हूँ और कंफर्ट महसूस करता I हूँ। have never spoken in the public for several years. I never had experience like मैं this. लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार है, ऐसा वाला कुछ अनुभव मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं था। I remember in my school days, मैं मेरा स्कूल के समय याद करना चाहता हूँ। one time I had to preach in the school for some program. कुछ प्रोग्राम मीटिंग था स्कूल में, वहाँ मुझको प्रचार करने के लिए और छोटा सा प्रचार करने के लिए मौका मिला। So the topic was this: TV is a boon or pain, is good or bad? That is the point. मेरा प्रचार का टॉपिक ये था, टीवी भलाई के लिए या बुराई के लिए है, That was the topic given to us. और टॉपिक मुझे दिया गया था। The topic will be given just 5 minutes before the sermon. It's an extempore preaching. वो ऐसा वाला एक प्रचार का समय है, टॉपिक दिया जाएगा प्रचार का 5 मिनट पहले। You have to prepare and preach. तो तैयारी होना है, तुरंत प्रचार करना है। I'm like shivering. मैं तड़प रहा था। Somehow I went and I spoke. That's the only time I spoke before coming to the और Lord. इसी समय पहली बार मैंने लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बातें बोला। I don't know, maybe in 1 minute I stopped and I ran. 1 मिनट मैंने कुछ तो करके वहाँ से भाग गया। I was very afraid to stand in the public. बहुत डरता था मैं उस समय लोगों के सामने खड़े होकर। This is my maybe 11th year in ministry. ये मेरा 11 सालों के सेवकाई में। I have never thought that I will be in this. मैं कभी भी नहीं सोचा मैं सेवकाई में होगा। I never had a dream like that. मेरा जीवन में ऐसा एक सपना भी नहीं था। When I finished my 12th class, जब मेरा 12वीं कक्षा पास हो चुका, I did my schooling in another country. मैं मेरा स्कूल का पढ़ाई दूसरी देश में किया हूँ। Yeah, so when I finished my 12th, I decided to go for mechanical engineering. मेरा 12वीं कक्षा का पढ़ाई पास होने के बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियर में जाने के लिए सोचा। So I came to Karnataka. मैंने कर्नाटका में आ गया। I joined a college in Mangalore. मैंने मैंगलोर में कॉलेज में शामिल ज्वाइन हुआ। I did my 1 year course. मैंने पहला 1 साल खत्म किया। During the first 1 year, पहला वो जो साल का बीच में the Lord spoke to me. परमेश्वर मुझे मुलाकात किया। Just like we were talking about Paul, God caught me. जैसा पौलुस के बारे में हमने बताया है और हमने अभी सुना, परमेश्वर मुझे पकड़ा। The Lord caught me and I left my course halfway and I came for my course. परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, मैं मेरा कोर्स को छोड़ दिया, मैंने निकल पड़ा। Let me tell you, even with regard to the empowerment of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता I हूँ। still remember before going to the seminary. मैं सेमिनारी में बाइबल पढ़ाई के जाने से पहले, I'm telling the story of 2014 February. ये 2014 फरवरी का कहानी है। So I was praying before the Lord.
मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। My only desire is that if I had to go for ministry, Lord, fill me with the power. I need the anointing of the Holy Spirit. मेरा प्रार्थना ये था, अगर परमेश्वर मुझे सेवकाई में भेजना है तो पवित्र आत्मा से मुझे भरना। So one night I am praying. एक रात में मैंने प्रार्थना कर रहा था। So I was eagerly, very much, I was desiring for the Spirit's work in me. मैंने ऐसा तड़प रहा था परमेश्वर और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए, बहुत मन पसंद करता था मैं। So I sat alone in my room for prayer. मैंने रूम में जाकर प्रार्थना किया। It is around 11 o'clock in the night. रात को 11 बजे का समय आसपास में है। In English there is a song, it's in Malayalam also. Pass me not, O gentle Savior. ये पास मी नॉट और जेंडर सेवन करके एक गाना है इंग्लिश का, वो गाना मलयालम में भी है, वो गा रहा था। The song's meaning is like this, the lyrics is like this. While you are watching on others, please see me as well. उसका मतलब ये है, क्यों दूसरों को ऊपर नजर रखा है, मुझे भी देखना। Like during those times there was some prayer in our church and everyone is getting filled in the Holy Spirit, but I couldn't receive. तो हमारा कलीसिया में प्रार्थना के समय बहुत लोग पवित्र आत्मा से आत्मा के सामर्थ्य से आराधना करते थे, मैं नहीं कर पाता था। So when I was in my prayer, I sang this song, Lord, you are touching other people, but I am still empty. जब प्रार्थना कर रहा था मैंने ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर आप सबको आप टच करता है और आप उनके जीवन को स्पर्शन देता है और दर्शन देता है, क्यों मेरे जीवन में नहीं दिया। So when I was praying and singing this song, जब मैंने प्रार्थना करते हुए इस गाना गा रहा I था, still remember that night. वो रात को मैं अभी भी याद करता The हूँ। Lord came down into my room and filled me with His anointing. परमेश्वर मेरा रूम में उतर के आकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरा। And you will not believe, it was when I came to my sense, it was morning 6:30. जब मैंने सुबह आँख खोलने के समय मैंने बेहोश होकर उसके बाद मैंने जब सुबह उठा था वो 6 बज गया था सुबह। But I knew in my heart that the Lord has filled me with His anointing. मेरे हृदय में मैं जानता था परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे मेरा हृदय को भरा था। That is where I surrendered my life for Christian ministry. वहाँ मैंने सेवकाई के लिए खुद को समर्पण किया। And since then, whenever I go for preaching, it's not because of my ability to speak, but I depend on the power of the Holy Spirit. उसके बाद मैं कहाँ पे भी प्रचार के लिए सेवकाई के लिए जाता हूँ, मैं खुद पर भरोसा नहीं रखता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई देता है। And I have seen the Lord working as I ministered. मैंने देखा परमेश्वर मेरे द्वारा काम करते हुए। I tell you with all humility, dear friends, without the power of the Holy Spirit, mission is impossible. मैं बहुत नम्र बनकर आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बिना सेवकाई करना नहीं होगा। If the Lord is not working through you, you cannot touch life. अगर परमेश्वर आपकी द्वारा काम नहीं किया तो आप लोगों को दूसरों को जिंदगी को बताना नहीं You होगा। are having a beautiful class and campus here. आप लोगों को बहुत अच्छा एक जगह और कैंपस और क्लास का परमेश्वर ने दिया है। Sit down in prayer. बैठना प्रार्थना में। Spend hours in prayer. अब जितने घंटा होता है उतने घंटा प्रार्थना के लिए समय The बिताना। Lord will fill you with His power and send you to this place. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य से भरेगा, आपकी जगह पे वो जगह पे लेके जाने वहाँ लेके चलेगा। Without that, this journey is impossible. उसके बिना ये सफर आपसे नहीं होगा। So that is the first point that I want to leave you with. वही पहला एक बिंदु मैंने आपको देना चाहता हूँ। The battle is overcome, won by the Lord. परमेश्वर ने इस युद्ध में लड़ चुका है और विजय प्राप्त चुका है। Paul is saying by this Jayotsav example, he is saying that yes, I was on some other journey, but with the battle with the Lord, I have lost. पौलुस ने बताना चाहता है, मैं एक युद्ध में था, एक सफर में था, वहाँ परमेश्वर ने मुझसे लड़कर मुझे हराया, वहाँ से मुझे लेके आया। Sin is a battle against God. और परमेश्वर की विरोध और काम और एक बात है, वो है पाप। But here Paul says, yes, I have lost it. पौलुस बताता है, मैंने हार चुका हूँ। And the second thing here, दूसरी बात ये है, in the triumphal procession metaphor that we need to learn is this. वो जय की उत्सव की वो जो बातें है, वहाँ और एक बात में सीखने का है। So first thing I said is that Paul is defeated. पहले मैंने बताया पौलुस हार चुका है। Second thing is, दूसरी बात ये है, Paul has become the conquered prisoner. पौल ऐसा एक स्थिति में है जिसको हरा के लेके आया, जो सेनाधिपति है उसकी समान। You remember the story? कहानी याद है ना? Yes, sir. Defeated prisoners have been dragged. जिसको हराया है उसको लेके आता है। Paul is saying, yes, I am just like that prisoner in the back. जो व्यक्ति हार मानकर जिसको हरा के लेके आ रहे हैं, वो व्यक्ति के समान में परमेश्वर के हाथों में है। Yes, as prisoners being led to the death on the last of the journey, I am just like that. जो व्यक्ति को हरा कर उनको मार डालने के लिए लेके आ रहेगा, वो व्यक्ति के समान मैं हूँ मेरे जीवन में। Paul in his epistle, Greek sermons, it is a
doulos. पौलुस ने उसको उनकी पत्री में एक शब्द को उपयोग किया डूलोस। Bond slave. उनको उन्होंने बताया मैं एक दास की समान हूँ। Yes, I am tied in the chains and I have been dragged in this procession of God. मुझे जंजीरों में बांध कर मुझे खींच के लेके आया है हरा के। Dear friends, what is Christian ministry then? सेवकाई का मतलब फिर क्या होगा? क्या है? Ministry is being led to death. सेवकाई ऐसा है और मृत्यु के वहाँ हमको अगुवाई मिला गया है। We have been traveling in the way of the cross. हमको क्रूस की सफर में हैं। God is leading me to death. That is what Paul is saying. वो क्रूस की ओर वो मृत्यु की वहाँ परमेश्वर हमको लेके चल रहा है। The question is, are you ready for it? अभी सवाल है कि ये है क्या आप लोग तैयार हैं? अरे हमने सोचा ये जय का उत्सव है, ये celebration. This is our joy and celebration. We were thinking this is a time of victory or this is a travel of victory. फिर भी हम ये सोचना है ये जय का उत्सव क्या है मतलब? You who have come here must understand the weight of the calling that is upon you. आपका जीवन में आपका जो बुलाहट है उसकी बात से आप लोग इधर तक आया होगा। Paul is saying, I am not the victorious army general. I am the defeated army general being dragged. पौलुस बताना चाहता है मैं वो विजय प्राप्त हुए सेनापति नहीं हूँ जिसको हरा के लेके आया है वो हूँ मैं। So the question is, do you have that commitment? अभी सवाल ये है क्या वो दृढ़ निश्चय आपकी जीवन में है या नहीं? We all want to be superstars in ministry. हम सब सेवकाई में बड़ा सुपरस्टार बड़ा सितारा बनना चाहता We है। want to be celebrity pastors. आप लोग बड़ा पादरी बनना चाहता है। We want to be, lifted up, glorified by everyone. आप लोगों के बहुत लोग आपको धन्यवाद करते हुए आपको स्तुति करने वाला एक माहौल में जीना चाहता है। आपको नहीं, हमको. We all have, I have it in my heart, but Paul is saying that is not the right thing. हम ऐसा वाले एक सोच में होगा फिर भी पौलुस ने बताया है ऐसा नहीं है इसका Yeah, मतलब। बड़े प्रेरित super apostles are doing that, but that is not what I am doing. बड़े प्रेरित लोग वो कर रहा है मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। I am being dragged by the Lord. परमेश्वर मुझे खींच के लेके आया है। I am walking in the path of death and the cross. मैंने वो क्रूस का और मृत्यु का सफर में मैं अभी हूँ। That is the example that he is giving here. वही है उदाहरण पौलुस हमें देता I है। will show you one more verse. और एक वचन दिखाना चाहता हूँ। Chapter 4, 1 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 4, verse 10 and 11. You look at it. दूसरा कोरिन्थियों 4 का 11-12 पढ़िए। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे थे, नंगे हैं। 10:4-10. हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। 4:10. दूसरा कोरिन्थियों 4 का 10 पढ़ो। क्योंकि 10 से न हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। Now we are carrying the death of Jesus in our life. Who are apostles? Who are pastors? Who are ministers? They are the people who are carrying death in their life. पर सेवक कौन है पादरी कौन है वो लोग ये लोग हैं यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरने वाला। 11th verse. 11 वचन पढ़िए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। By our death, हमारा मरने से यीशु मसीह का जीवन. You understand, my friends? आप लोग ये बातों को समझ आए नहीं मेरा दोस्तों? Do you understand, my friends, the seriousness of the call? ये बुलाहट का महत्व या मतलब क्या है आप लोगों को समझ आया? What have we thought about Christian ministry? सेवकाई के बारे में आप सब क्या सोच में लग? We have thought. हमने ये सोचा I have decided, I have committed my life for ministry. मैं परमेश्वर की सेवा के लिए मेरे जीवन को समर्पित I किया। left my home and I came here for studying. मैं घर छोड़कर इधर पढ़ने के लिए आया हूँ। Down the line, God will honor me. पीछे हमारा सोच ये होगा परमेश्वर मुझे बहुत आदर करेगा। इतना आदर करेगा that people who in my village will be, wow यार. उतना आदर परमेश्वर मुझे करेगा मेरा गांव वाले लोग मुझको देखकर तो ऐसा सोचेगा यार ये बहुत बड़ा है। When he was in our village, he was simply roaming here and there, but now you see his life.
ये गांव में घूम रहा था, कैसा बंदा था ये, अभी इनका जीवन को आप देखो, अभी उसका ड्रेसिंग स्टाइल देखो, अभी उसको बाल देखो, कपड़ा का स्टाइल देखो। You will not believe, I don't know here also, you will not believe, some people who studied with me they are in Kottayam. जो लोग मेरा साथ कोटे में पढ़ा, I visited their village in Bhopal. Bhopal. मध्य प्रदेश भोपाल में मैंने उन लोगों का गांव में किया जा चुका हूं। So their local church pastor is saying to me with lot of pain their stories. वहाँ का जो कलीसिया का पादरी है वो दर्द के साथ उन लोगों का कहानी हिसाब से बताया। I asked them, Pastor जी, where is this guy? ये आदमी कहाँ है? आपके साथ है अभी? So pastor is telling with sorrow their story. पास्टर ने वो निराश होकर वो जो भाई लोगों का कहानी सुना रहा था। I asked what is what happened? He say the graduates of a seminary when they go to the village हिंदी में बात नहीं करेंगे। In the village, in the market में आप जाके इंग्लिश में बात करता है। जो लोग पढ़ के ग्रेजुएट होकर वापस गांव में जाएगा, जो गांव में जाकर भी इंग्लिश में प्रचार करना चाहिए। ट्रांसलेटर चाहिए मुझे। अरे he was a local boy who speaks in Hindi, but he say हिंदी भूल गया। क्या वो लोग वही गांव में जीने वाला लोग था, फिर वापस जाकर बोल रहा है मैं हिंदी भूल गया, मुझे अनुवाद करने का व्यक्ति चाहिए। Even in the market, in the shop, they speak in English. मार्केट में बाजार में जाकर इंग्लिश में बातें कर रहा है। Why? क्यों? People will say and say, अरे यार, we learn English. लोग हमको देखकर बताएगा अरे यार ये तो इंग्लिश सीख के आया है। That is in our mind. हमारे दिल में यही है। हमारा दिल हृदय में भी यही सोच है। One day God will give me a good vehicle. परमेश्वर एक दिन मुझे अच्छा गाड़ी देगा। I will go in the vehicle. मैं गाड़ी में जाएगा। I will build a big church. एक बड़ा कलीसिया मेरे लिए होगा। All things are coming in my mind. बहुत सोच हमारे जीवन में आ जाता है। One guy after going to the village after studies, he said that Pastor, I cannot sit on the floor. I need chair. एक व्यक्ति गांव में जाकर वापस बोला मैं नीचे बैठना नहीं चाहता हूँ, मुझे कुर्सी का जरूरत है। Because in the seminary he was sitting on the chair. क्योंकि कॉलेज में वो कुर्सी पे बैठ रहा था। The vision is lost. वो जो दर्शन पाया वो उनके We think that seeing our colorful life, people will be attracted to Christ. ओ हम सोचेगा हमारा जीवन का ऐसा वाला एक आशीर्वाद हो, एक अलग अलग कलरफुल एक लाइफ हमको देखकर हमारा देव या बाहरी बातों को देखकर लोग मसीह को जानेगा। You understand? Say it again. Not by our outward thing. हमारा बाहरी बातों को देख के नहीं। Don't think you can attract people by your lifestyle. हम हमारा बाहरी बातों को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। Today I came in a scooter. मैंने आज स्कूटर में आया। Oh, so we will become pastors. So we need scooter. हम पादरी बनेंगे, हमको स्कूटर मिल जाएगा। No, this is not joke, brother. This is a serious thing in ministry. सही है कि नहीं है? सही। Some pastor said recently. The story is like this. He was telling, Pastor, only if the pastor has a car, believers will come to the church. किसी पादरी ने बताया अगर पादरी को कार है तो विश्वासी लोग कलीसिया में आएगा। अरे पास्टर पैदल आ रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं उसके साथ? हमको क्या मिलेगा? This is the story of Christian ministry. ये सेवक लोगों का कहानी है। This is the shameful story of the ministers. ये सेवक लोगों का शर्माने वाला एक कहानी। Oh, recently one pastor is prophesying to the other. एक पादरी भविष्यवाणी कर रहा था किसी से। He is saying like this pastor is going to have helicopter. ये पास्टर से एक पादरी भविष्यवाणी कर रहा था, ये जो पादरी है ना उसको हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। बाइक हो गया, कार भी हो गया, अभी हेलीकॉप्टर देने वाला है परमेश्वर। Why? Because you will be the only pastor with helicopter in Kerala. वो बताना चाहता है आप ऐसा एक पादरी होगा केरल में सिर्फ आपको ही हेलीकॉप्टर लो। You will go in the helicopter and bring pastors from Kochi and Trivandrum. आप हेलीकॉप्टर में जाकर दूसरा पादरी को लेके आएगा कोची ट्रिवांड्रम से। You see, this is the worldly ambitions of pastors we see here. दुनिया का जो लालच है ऐसा वाला सोच पादरी लोगों को भी है। Even when you are talking about other pastors, look into our own hearts. अभी हम लोग हंस रहा है, हम खुद के हृदय को एक बार देखना। I finished my BTH. जब मैंने BTS खत्म किया, So I will wait. मैं इंतजार में था। I will wait for opportunities to come. मैं इंतजार में था, अलग-अलग मौका मेरे लिए ढूंढ के आने पड़े। Sovereign vacancy will come and you will ask, इधर कितना मिलेगा, उधर कितना मिलेगा, इधर कितना मिलेगा, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, उधर हम जाएंगे। हाँ,
क्या मिनिस्ट्री है भाई ये? After you get done with your BTH or your course, you will be waiting for the opportunities to come, and you will find from which place I will get more salary. When you find that from this place I will get more salary, that will be your ministry place. That is our mentality. सही है कि गलत? Is it truth or not? You see this apostle, the greatest apostle that we are seeing, is being dragged like a prisoner, and he says that is the model of ये ministry. जो बड़ा प्रेरित पौलुस की कहानी सोचो, कैसा बता रहे हैं उनके बारे में, उनको बंधुआई में बांध कर खींच के लेके आया है सेवकाई के लिए। That vision we have not got, my dear brethren. That vision we have not got in our hearts. वो दर्शन हम हमारे जीवन में हमको मिलता अभी तक मिला नहीं है। We are behind our own things. हम हमारा कुछ लालच के पीछे What हैं। will I get? मुझको क्या मिलेगा? What is my benefit? मेरा क्या लाभ है? But Paul is saying, I am led as a prisoner to my death. पौलुस बताना चाहता है, मैं एक कारागृह में बंदी वाला एक व्यक्ति, बंदी होने वाला व्यक्ति के समान मैं जा रहा हूँ। You just think with me in detail. आप मेरे साथ गहराई से सोचना। What is the message that we are preaching? हमारा मैसेज, हमारा संदेश क्या है? क्या है? हमारा प्रचार का संदेश क्या है? What is our message? Gospel message. We are going to the field. What is our सुसमाचार में message? हमारा संदेश क्या है? ना जी, जोर से बोलो। गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, Jesus God, this is what? death. Death, right? Yeah. Death and resurrection. Paul in his epistle, especially in Corinthians, he says it is the crucial the message of the cross. उसका संदेश। पौलुस ने उनका पत्री में कुरिन्थियों में बताना चाहता है, हमारा संदेश ऐसा संदेश है, क्रूस का क्या संदेश। संदेश है? क्रूस का संदेश। सही है ना? So what is the message? You are saying God will save you. परमेश्वर आपको बचाएगा, उद्धार देगा। उद्धार Yes, देगा। you will get deliverance, you will get healing, you will get salvation. आपको उद्धार मिलेगा, चंगाई मिलेगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्या is it logical, brother? क्या ये सही है? Is it sensible? If you think with your mind. क्या हम हमारा बुद्धि के अनुसार सोचा तो आपने जो बोला वो सही है? When people were seeing the cross, when people were looking at the cross, they said, "You save yourself first." क्योंकि लोग क्रूस पे देखकर यीशु मसीह से बोल रहा था, तो खुद को बचाना पहले। You are saying, "Yeah, you will be saved." How? Through the cross. Huh? Through the cross. हम पता है क्रूस के द्वारा हमको उद्धार मिलता है, फिर कैसा वो खुद को बचा नहीं पाया? You understand the problem? समस्या क्या है, आप लोग समझ You लिए? know what God is doing? परमेश्वर ने क्या कर रहा है आपको पता God is mocking the wisdom of man. है? इंसान का बुद्धि को परमेश्वर टट्टे पे ले रहा है या मजाक कर रहा है। Yeah, your concept of salvation is what? Throw the cross, come out in power. हमारा सोच विचार में उद्धार ऐसा है, सब क्रूस के अनुभव को छोड़ दो, अधिकार में आ जाओ। अगर परमेश्वर है तो come down, नीचे आ जाओ। बात ये है, if you are Christ, you leave everything and come down. That's what they said now, mocking at Jesus. यीशु मसीह को मजाक करते हुए लोग वही बोला था। What God is doing? परमेश्वर ने क्या कहा? God is saying, you want salvation? अगर आपको उद्धार पाना है तो Look at the cross who has not saved himself. क्रूस पर देखना जो अभी तक उद्धार नहीं पाया। You want to see strength? अगर आपको सामर्थ्य का बारे में देखना है तो Yes, strength means meeting someone who will kill and destroy everyone. अगर आपको सामर्थ्य के बारे में समझना और देखना है तो But God is saying, look at the cross. क्रूस की ओर देखो। The strongest man, the omnipotent God. सबसे सामर्थ्यशाली और सबसे शक्तिमान व्यक्ति परमेश्वर कहाँ है अभी? Where is he? He is on the cross. He is the strongest one. He didn't come वो down. क्रूस में है, वो क्रूस को छोड़कर नहीं आया। That's what Paul said. The message of the cross is a foolishness to the unbeliever. इसलिए पौलुस ने बताया जो उद्धार में नहीं है अविश्वासी के लिए क्रूस की संदेश एक मजाक की संदेश जैसा होगा। Yeah, it is a foolishness, right? It is a foolishness. Logically, if you think, how is it possible? ये मूर्खता की संदेश होगा क्योंकि सोचने से परे है। And that is what Paul is saying. The message is a foolishness. The life of the apostle also is a foolishness. अगर संदेश फूलिश और मूर्खता है तो हमारा जीवन को भी मूर्खता के रूप में लोग मानता है। Yes,
But we thought we can make it colorful. हम सोचा हम हमारे जीवन को बहुत अच्छा तरीका से कर सकते हैं। Yes, we thought that we will make the message colorful by becoming super apostles. हमने सोचा हम हमारा संदेश को चमकने का तरीका करेंगे क्योंकि हम प्रेरित हैं। You did not do that. हम करने की जरूरत नहीं Through है। your humiliated life, through your broken life, God will do great things. हमारा नम्रता का जीवन के द्वारा, हमारे टूटेपन जीवन के द्वारा लोग हमारे परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के जीवन में काम करेगा। That is what Paul is saying. The super apostles are not having health problem, but I am having a thorn in my flesh. इसलिए पौलुस बताता है बड़े-बड़े प्रेरित लोगों के जीवन में कुछ कमजोरी और कुछ दर्द नहीं है, मेरा जीवन में है, फिर भी मैं हूँ The प्रेरित। grace of God will strengthen me in my weakness. परमेश्वर का अनुग्रह मेरा कमजोरियों में मुझको काम आएगा। Yes, you are saying that my letters are heavy, but my body presence is weak. लोग बोलता है मेरा पत्रियां बहुत कठिन रूप से है, फिर भी इनका शारीरिक रूप से कमजोर है। That कमजोर, that weak people, the weak man apostle is used by God to spread the gospel. वो जो कमजोरी प्रेरित है, कमजोरी लोग हमारे जैसा है, सुसमाचार को बांटने के लिए परमेश्वर उपयोग करेगा। Do you think that I am not able to speak well? आप लोग सोचते हैं क्या मैं मुझसे बोलना भी नहीं होगा? I cannot preach. I am not a big preacher. I don't think I can be. मुझे प्रचार करना नहीं होगा, बड़ा प्रचारक नहीं Oh, हूँ। I am fearful in my heart. मैं बहुत डरते जा रहा हूँ। Oh, I cannot do ministry. मैं सेवकाई नहीं कर पाता हूँ। That is what God needs. That is what God needs. परमेश्वर वही चाहता है हमारे जीवन God से। needs broken people. परमेश्वर टूटे हुए लोगों को ढूंढते हैं। God needs weak vessels. परमेश्वर कमजोरी बर्तन को ढूंढते हुए आया है। God do not want superstars. He is the army general who is leading us. उनको बहुत बड़े-बड़े लोगों का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेनाधिपति वो है जो हमको अगुवाई करेगा। He needs weak vessels who will stand for him. कमजोरी बर्तन को कमजोरी और जो बर्तन को परमेश्वर का हाथों में देना। Hallelujah. Hallelujah. The second thing that I am telling is दूसरी बिंदु मैंने आपको बताना चाहता हूँ, that we are becoming the slave of Christ. हम परमेश्वर का डुलोस या परमेश्वर का दास बनना है। And this journey is a journey of death. हमारा सफर है, मृत्यु का सफर में हम हैं। You have that commitment in ministry. क्या और दृढ़ निश्चय आपके जीवन में है सेवकाई के बारे में? You did not give me answer. आप लोगों को उत्तर देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। But think for yourself. खुद का जीवन में, खुद का हृदय में सोचना। Because today's Christianity is speaking something else. आज का मसीह और मसीहों का प्रचार ही इसकी विरोध की प्रचार है। Come to Jesus, everything will be okay. क्योंकि मसीह में आना सब कुछ मिल जाएगा। Yeah, you come in here, it's a you come in cycle, you will go in car. साइकिल में आओ, कार लेके वापस जाओ। Come in car, you will go in flight. कार लेके आओ, फ्लाइट में वापस जाओ। This is the message we are preaching. आजकल हमारा लोगों का संदेश ही If है। you preach this, so many people will come. अगर आप ये प्रचार किया तो बहुत भीड़ आपका सामने But if आएगा। you preach this Roman procession as a slave, you are going to death, no one will come. ये रोमियो का युद्ध की कहानी या स्लेव बनने का, डुलोस या दास बनने का प्रचार आप किया तो कोई नहीं आएगा शायद। People will look at you and say, "अरे यार ये he went and he got nothing यार." लोग आपको देख के बोलेगा ये गया था फिर कुछ नहीं मिला है अभी तक। I am telling my story also. People sometimes in my family they say, "You could have studied and don't become an engineer or done something with your life." मैं मेरी कहानी को बताना चाहता हूँ। मेरा परिवार में लोग और रिश्तेदार बताते हैं तो इंजीनियर पढ़ के गया तो बहुत कमा सकते थे अभी तक। You could get money. बहुत कमा सकते You हैं। could live well. बहुत अच्छा तरीका से जी सकते हैं। क्या मिला आपको? What did you get? Don't do ministry for getting anything. Ministry is about giving your life as a sacrifice. मिलने के लिए सेवकाई में नहीं जाना और देने के लिए सोच और त्याग देने के लिए सोच है तो सेवकाई में जाना। Some of you have joined new these days. आप लोग तो कुछ लोग नया लोग हमारे बीच में हैं। Yeah, you think seriously, and if you have that commitment, you should stay. Otherwise, you can go. आप लोगों के लिए द्वार तो खुला है। अगर आप लोगों के हृदय में ये कमिटमेंट है तो आप लोग रुक के पढ़ सकता है, नहीं तो आप लोग वापस जा सकता है। I tell you, even the pastors may not preach this. Okay. शायद मैं बताना चाहता हूँ पादरी लोग भी ये प्रचार नहीं कर सकता है No, कभी। I want to explain this again little more. मैंने आप लोगों को और कुछ विवरण देना चाहता हूँ इसके बारे में। Otherwise, it will be half. You will be confused. नहीं तो आप लोग बहुत संदेह में आप लोग बैठेगा। You look at the preachings of Jesus. यीशु मसीह के प्रचार के बारे में एक बार देखना। But in our churches, in our meetings, it is not about Jesus. It is most about Old Testament people.
जब हम कलीसिया में जाता है और प्रचार सुनता है, ज्यादा यीशु मसीह के बारे में नहीं, पुराने नियम के बारे में सुनाता I है। am also very interested in Old Testament, but Maybe- the message is not this. मैं भी पुराने नियम को पसंद करता हूँ, फिर भी संदेश अलग आएगा। For example, Psalm 23, भजन संगीता 23 मेरा शत्रु के बीच में तू मुझे मेज Oh, God is a table before my enemies. So who are my enemies? My gaon, my villagers are my enemies. So there is a table. I am coming like an executive, and God has honored me. Wow! शत्रुओं के बीच में मेज प्रभु मेरे लिए करेगा। हम शत्रु किसको सोच रहे, हमारा गांव वालों को, हमारा अड़ोस पड़ोस वालों को, उसके बीच में हम जा रहा है। Oh, we are honored. God has honored him. Yes, there is a house, there is God. You know, we think that God has honored him. परमेश्वर मुझे आदर दिया, इसलिए मैंने वो लोगों के बीच में जा रहा हूँ। Do you think that is the honor? आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं क्या? वो है आदर की बात, Is that the blessing? वो है आशीर्वाद की बात। A big car. You know, recently you may have seen one family, I think in Bombay or somewhere. They had taken this new one car, Volvo or some, Bangalore. Bangalore. So Yeah. that lead, you saw that? One They just truck over there. and after that the reel they put together. Vandi edukkunnathu, vandi okay edukkunnathu reel. You saw that? You tell them? रिसेंटली अभी कुछ दिनों से पहले कुछ बातें हुआ था, बेंगलुरु में सबसे कटक वाला एक कार का कंपनी है, वोल्वो कंपनी का एक बड़ा अमीर व्यक्ति ने वो कार को खरीद कर पूरा परिवार वो कार में जा रहा था, बेंगलुरु की कहां पे हाईवे में हुआ, उनकी साइड से आने वाला एक ट्रक पलटी मारकर एक कार के ऊपर गिरा। वो कार का रील्स में मैं भी ऐसे देखा था, और कार कभी भी नहीं टूटेगा, जान बचा सकता है करके वो कार का कंपनी बताता है। वो कार को नीचे से लेने का समय पूरा पापड़ बन गया, पूरा दब गया लॉरी के नीचे। ऐसा वाला एक कहानी रील्स में भी देखा। We are saying that is a blessing. लोग बताते हैं ऐसा वाला कार लेना आशीर्वाद अरे है। एक एक्सीडेंट में पापड़ जैसे बनने वाला है आपसे। Is that the table you want? ऐसा वाला मेज हमारे हमको चाहिए क्या? If there is earthquake, the building will fall. That is the blessing you want. अगर हमारा बिल्डिंग इतना बड़ा हो और धरती का अंदर जाते चले जाते हो, Is this the table you need? क्या ऐसा वाला आशीर्वाद मेज आपको चाहिए? In the New Testament, that is not the blessing, my friends. नया नियम में ये नहीं है मेरा प्रिय आशीर्वाद का The मतलब। table that cannot be destroyed. ऐसा वाला एक मेज जो कभी भी नष्ट या The तोड़ नहीं blessing, सकता है। the blessing that can never be taken away. ऐसा वाला आशीर्वाद है कोई नहीं छीन सकता है That is आपसे। you who as sinners have become saints, the children of God by grace. आप लोग हैं और हम लोग जो है जो पापी था, परमेश्वर हमको बचाया, परमेश्वर को पुत्र बनाया और हमको लेके आया। Whereas when our enemy Satan was saying, I will take him to hell, God is taking us to be his children. शैतान हमारे शत्रु ने बोला मैंने इनको नरक लेके जाऊंगा, परमेश्वर हमको देकर बोला इनको मैं लेके जा रहा हूँ। That is the blessing we get. वो आशीर्वाद हमको मिला है। लेकिन हम ये संदेश को पूरा उल्टा बना दिया। We are just diverting this message into something else. Yeah, Jesus' message, that's what I was telling you. Look at the preachings of Jesus. इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह का प्रचार को एक बार देखिए। Yeah, one time Jesus is preaching and a big crowd is coming behind Jesus. एक समय में एक दिन में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, बहुत भीड़ उनके पास आया। I don't need to read. If you are writing it down, you can write Luke chapter 14. You can read later on. पढ़ने की जरूरत नहीं, लिखने वाला लिख सकता है। लूका अध्याय 14। You read it later on and see for yourself. बाद में पढ़कर उनके बारे में मनन करके So when lot of people is coming, usually for us as pastors we will be happy. Wow. जब बहुत लोग आता है, हम जो पास्टर लोग हैं हम बहुत खुश हो जाता है, हम बहुत भाव करके बैठता Yeah, as है। I said, next academic year there are 50 more students. Simpson sir is happy. जैसा अगर इधर 50 और स्टूडेंट्स होने आने वाला दिन में आया तो मैं खुश होगा। Yeah, in my church if people are coming Sunday, there are more people. I am happy. बहुत लोग रविवार का प्रार्थना में आए तो मैं बहुत खुश होगा। But Jesus, he suddenly stopped and looked back. यीशु मसीह ये लोगों को देखकर रुक गया और पीछे देखा। And Jesus said very clearly, यीशु मसीह बहुत अच्छा से समझाया, if you want to come behind me, अगर आपको मेरे पीछे होना है तो three things. Who said? Three things you should do. 3 बातें आपको करना है। Jesus said, deny yourself and take the cross. खुद को त्याग देना और खुद के बारे में भूल जाना, क्रूस उठाना। Cross उठाना मतलब क्या है? What is the meaning of taking the cross? Cross हमारे people will be around the cross. Cross डाला है। माला को पहनने का काम Taking the cross. Here cross इधर is there. ना? What is the meaning of taking the cross? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हैं? पाप से पाप से बचकर जीवन जीना और
पूरा दिन उसका पाप को अनुभव छोड़कर बयान करो। हाँ। पाप को छोड़कर नए दुनिया में आप तो वैसे राजी होते ना, वो भी भैया भी वही बोला है। दूसरा कुछ मसीह के समान दुख उठाना। मसीह के समान दुख उठाना, और कुछ that also has a story. ये सबसे पीछे भी एक कहानी है क्रूस के Just like we learn this procession, a Roman procession, in those time when Jesus is preaching, हम ये रोमियो का विजय का जो रैली के बारे में अभी हम सीखा, उसके समान जैसे भी ये क्रूस का भी कहानी when है। Jesus is preaching, take up the cross and follow me. यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। For them they can understand easily. You know what is the meaning? वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकता है इसकी कहानी। Because during that time, वो जो समय में when there is a criminal, वहाँ एक क्रिमिनल व्यक्ति हो जो पाप किए हुए एक चोर जैसा कुछ होगा, क्या तो उसको पकड़ा और उसको मारने के लिए to kill him, he has to be crucified. उनको मार डालने के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाना In पड़ेगा। Kerala last day there was a case that was convicted and the girl was given capital punishment, that is hanging her. केरला में अभी एक केस की कहानी है, वो जो एक लड़की है उसको एक पनिशमेंट मिला गया, उसको कैपिटल मतलब उसका ऐसा वाला एक पनिशमेंट है, उसको Hanging, you know, hang करता है। in India the capital punishment is hanging. Just like that during Jesus' days the capital punishment is what? Crucifixion. जैसा अभी हमारा ऐसा पनिशमेंट है, उस समय में वो पनिशमेंट था क्रूस पर चढ़ा था। Okay, so the person who is condemned for crucifixion has to carry the cross and walk. वो जो व्यक्ति का ऊपर न्याय किया गया है, इसको मार डालना है, वो खुद उनका मार डालने का क्रूस उठा के चलना So है। when he will take cross and walk through Chepat, all the people will see and understand. अगर हम गलती करेंगे तो हमारा सजा भी वैसे होगा. बात ये है अगर You understand that ना? So that is the point. So taking the cross and walking means what? क्या होने वाला है उसको? क्या होने वाला है? मृत्यु. यीशु मसीह बोल रहा है, you take the cross and come behind me means you have to die. यीशु मसीह ने ये बोला, क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो, उसका मतलब ये है, मतलब आप मरना है। वही है ना, पौलुस भी वही बोला था ना. You have to die. यीशु का चेला बनना है. You want to be the disciple of Jesus. Take your cross and come. अगर यीशु मसीह को चेला बनना है तो आप लोग क्रूस उठाना और उसके पीछे बोलना। After that, Jesus is saying, after some time again, Jesus is telling a story, example. उसके कुछ देर के बाद यीशु मसीह ने और एक उदाहरण बताता है। Jesus said like this: You are building a big tower. यीशु मसीह ने बोला, आप एक बड़ा टावर बना रहा है। If you are building a tower or a house, you are building a house. You are building a home. तो आप लोग एक घर ऐसा बना रहे हैं, ऐसा समझो। So Jesus is saying, before building the home, you have to sit down and calculate how much money is required to finish. आप घर बनाने से पहले आप लोग बैठकर सोचने की जरूरत है कितना खर्चा होगा पूरा करने के लिए। Otherwise, you had 50,000, you build the foundation, you have no money to build the rest. अगर नहीं तो आपका हाथों में 50,000 है, आप लोग खुद बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद Halfway you have left it. आधा छोड़ना पड़ेगा। So people will see and say, "Hey, yaar, what kind of person? He just built the foundation. He has no money." बात ये है, आप लोग स्थापना किया, उसके बाद बनाने के लिए पैसा नहीं है, आप लोग छोड़ दिया, लोग हमारे बारे में ऐसा बातें करता है। Yes or no? So Jesus is saying, before starting, you sit and count the cost. इसलिए बनाने से पहले बैठकर कितना खर्चा होगा योजना और प्लान बनाना। What is Jesus saying? यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? If you want to come behind me, before coming, sit and calculate the cost. अगर मैं आप लोग मेरा पीछे होना चाहते तो पहले से बैठकर सोचकर निर्णय लेकर चलना। Yes, you understand? Yes, I want to be in ministry. I want to do BTH. Yes, you should do BTH. But before starting your BTH, sit down and count the cost and see if you can give the cost. क्या मैं सेवकाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सेवकाई के लिए बीटीएच करने के लिए आया हूँ, फिर भी बात यह है पहले बैठकर सोचकर निर्णय लेना। Yes, can I give my life? क्या मैं मेरा जीवन सेवकाई में देना चाहता हूँ? That's what Jesus is saying. वही बात यीशु I मसीह can ने show you one more verse. Luke 14 you wrote. You just write this also, John 12. Don't need to read. यूहन्ना से सुसमाचार 12 अध्याय। John 12, otherwise John 12, you can just look at it. यूहन्ना 12 अध्याय में कुछ बातें हम देखेंगे अभी। Look at verse 14. वचन 14 पढ़िए, 12 का 14। 12:14. Not 14:24. Sorry, 12:24. 12 का 24. 24 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का हाँ, दाना हाँ। भूमि में पड़कर हाँ। मर न जाता हाँ,
वह अकेला रहता है, हाँ। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Listen, what is Jesus saying? You have to continue reading. Wait. Jesus is saying, गेहूं का मर जाता है। a seed is there. If you keep the seed in your shell, it will remain there forever. अगर आपने उससे वो जो दाना है वो लेकर आपके पास रखा तो वैसे वहां ही पड़े रहेगा। You know ना, बीज, seed. बीज। But if you put that seed on the ground, और आप लोग वही बीज को मिट्टी में डाला तो the seed will die. वो जो बीज है वो मर The जाएगा, covering will break. उसका जो कवर है वो बाहर को बातें निकल And जाएगा, from inside, life will start coming. उसके अंदर से नया जीवन आगे उतर कर आएगा। And there will be fruit, and the fruit will have more seeds, and again there will be lot of fruits happening. उसमें फल आएगा, वो फल में से और फल बीज आएगा, वहां से और बहुत कुछ कर सकता है। What is Jesus saying? यीशु मसीह ने क्या बताना Jesus चाहता है? is saying, यीशु मसीह ने ये बताना I चाहता am है, like that beach. मैं वो बीज के समान हूँ, I am going to die on the cross, मैंने क्रूस पे मरने वाला हूँ, and through my death, people will be saved. वो मेरा मृत्यु से बहुत लोग उतर पाएगा। But Jesus didn't stop there. यीशु मसीह वहाँ- After telling about him, then Jesus said about the disciples. Continue reading next verse. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, Now he is telling about the disciples. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। maybe you are seeing these verses for first time. Underline it very clearly. What did he say? वहाँ क्या वह होता है? उसे खो देता है। If you love your life, अगर आपने आपका प्राण को प्यार किया तो continue reading. खो जाएगा। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, It is very clear. इस जगत में the life of this world, if you think it is important, you are going to lose it. अगर आप आपके प्राण के बारे में इस दुनिया में आप बहुत मुख्य बेहतरीन है अच्छा करके सोचा तो You will lose it. आप खो जाएगा। If you throw your life, अगर आप प्राण को देना चाहते तो your life will be fruitful. आपका लाइफ बहुत अच्छा फलदायक होगा। Christian ministry is throwing yourself to death. यीशु मसीह का सेवा का मतलब ये है खुद मृत्यु के लिए हम खुद को देना। Now, that doesn't mean that you have to take a sword and kill yourself. इसका मतलब ऐसा नहीं है चाकू लेकर खुद को मारना। In some places of the, especially with regard to our present Indian context, the situation is getting very tough. हम भारत की माहौल देखा तो बहुत कठिन रूप से जा रहा है। Some of you, when you go to the northern fields for ministry, you will be facing tough जब आप opposition. लोग आपकी देश में जाकर सेवा करना बहुत टफ और बहुत कठिन होगा। Even here we may face tough opposition. इधर भी शायद आने वाले दिनों में बहुत कठिन बातें होगा। Some of us can be even killed physically. They may kill us. कुछ लोग हमारा शरीर को मार डालने वाले लोग हमारे सामने आएगा। That commitment must be there. इनको दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में But होगा। it is not only about physical death. इस ये बाहरी मृत्यु का कहानी नहीं है। In ministry, you have to die daily. हम आंतरिक रूप से हम अंदर से हर दिन मरना है। How will you die every day? हर दिन हम कैसे मर सकता है? Yes, you will have, as I said before, you will have big dreams about your life. हमारे जीवन के बारे में बड़ा योजना होगा। उसको मारना है. Yes, you will have temptations for power, for money, for positions, for dreams and ambitions, everything you put to death and follow Christ. पैसा और अधिकार और ऐसा बड़े बड़े चीजों के ऊपर हमारा मन होगा, सबको मार डालना सेवकाई के लिए। Before coming back, read the next verse also. वह अनंत जीवन के लिए हाँ। उसकी रक्षा करे। Yeah, if you throw your life, you will keep it for eternal life. Next verse. यदि कोई मेरी सेवा करे Listen. यदि कोई मेरा सेवा करे तो if you want to do ministry, मेरे पीछे खोले। मेरे पीछे होले मतलब just like that seed was put to the field and died, you also must put yourself to death. Continue. और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। That is the promise. That is the promise for Christian minister. वहाँ एक वाचा हमारे लिए दिया गया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी Yes, होगा। if you throw your life for death, what will you get, brother? अगर हम हमारा जीवन को मृत्यु के लिए दे दिया तो हमको क्या लाभ Pastor है? जी हमको क्या मिलेगा? What will I get in ministry? बात मिलेगा, पास्टर मुझको क्या मिलेगा? Jesus is saying the answer. यीशु मसीह उत्तर दिया है वहाँ। Nothing of this world. ये दुनिया का कुछ नहीं मिलेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? No, sir. Let us think again. नहीं
सर और एक बार सोचने दो Yes, हमें। Jesus also said that please don't come behind me, sit and calculate the cost. इसलिए यीशु मसीह बोला अभी जल्दी से नहीं आना, बैठ कर सोच कर चिंता करके अपना आना। जीवन को बर्बाद मत करना. There are several things you can do with life, but for ministry you need commitment. अगर सेवका करना है तो दृढ़ निश्चय के साथ निकलना है, अगर नहीं है तो वहाँ ही बैठ So जाना। Jesus is giving a promise. If you do that, you will sit with me. मेरा साथ बैठेंगे. Next verse. यीशु मसीह को अच्छा दिया, अगर तुम लोगों को किया तो हम लोगों को किया तो मसीह के साथ हम बैठ सकता है। Next verse. यदि कोई मेरी सेवा करे तो Yes, if you will do my ministry, if you will serve me, तो पिता उसका आदर करे। hallelujah. आमीन। क्या मिलेगा? आदर उसका आदर करे। God will honor. परमेश्वर और पिता हमको आदर करेगा। When this prisoner is being dragged behind this chariot, वो जो कब्जादारों को हम लेके इधर आता है खींच के, the people will mock him. वो लोग उनका ऊपर मजाक करता है। Oh, he was very powerful, but you see his situation लोग now. बताता है बहुत सामर्थ्यशाली था, अभी उनका हालत देखो। But one day God will upload for that prisoner who's being dragged. फिर भी परमेश्वर एक दिन हमारे आदर करेगा, वो जो हमको लेके आने के बाद। You look at the life of Paul himself. पौलुस की जिंदगी के बारे में एक बार देखना। I told her he was an established scholar, Bible teacher. He was reputed teacher. वो एक बाइबल का सिद्धांत को सिखाने वाला अध्यापक था, एक अच्छा व्यक्ति था, एक बड़ा व्यक्ति था। People used to honor him. उनको लोग आदर करते थे। He used to be preaching everywhere. वो बहुत जगह पे प्रचार करने वाले थे। But when he became a Christian, जब वो मसीह बना, he's becoming a slave and people are mocking his life. वो एक दास बना, लोग इनके बारे में मजाक करना शुरू किया। And Jesus is saying, if you will serve me, the Father will honor. यीशु मसीह ने बताया अगर तू मेरा सेवा, आप लोग मेरा सेवा किया तो पिता भी तुमको आदर करेगा। Do you know the story of Stephen? स्टीफन का कहानी पता है ना? What happened to Stephen? उनका क्या हुआ? Stoning, right? Stoning to death. पत्थर से मारा था। When he was almost dying, जब मृत्यु का और अंतिम समय में था, he kneeled down and he is seeing the heaven is open. उन्होंने घुटनों टेक कर उन्होंने देखा स्वर्गराज उनके लिए खोला है। And when the heaven is open, he sees a vision. जब स्वर्गराज खुला वो एक दर्शन देख रहा He है। is seeing Jesus standing up at the right hand of the Father. वो देखा यीशु मसीह राइट साइड में खड़ा हुआ है पिता का। Why did Jesus stand? क्यों यीशु मसीह खड़ा हुआ? To honor the homecoming of this martyr. क्योंकि एक गवाह को आदर देने के लिए, घर पे वापस लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए खड़ा No हुआ। one clapped hands for the message of Stephen. स्टीफन उसका प्रचार के लिए कोई हाथ ताली नहीं मारा। No one appreciated Stephen for his ministry. उनको किसी ने भी आदर नहीं दिया सेवकाई में। We are doing ministry not for applause of the people, but for the honor of the हम दूसरों का Father. ताली को देखते हुए हम सेवकाई नहीं करता है, परमेश्वर की ओर देखते हुए करना People है। will criticize you, mock you, and even can kill you, but the honor is from God. लोग आपको बहुत सताएगा, शायद मार भी डालेगा, फिर भी सोचना परमेश्वर मुझे आदर देगा। So the life of Christian ministry is the walk on the way of the cross, on the path towards death. इस सेवकाई का सफर में हमारा बात ये है क्रूस की ओर देखते हुए मृत्यु की ओर हम चलना है। What I said, you have written it down. Some of you are writing. कुछ लोग ये बातें लिख रहा था। You should read those portions in detail. आप लोग वो वचनों को बहुत गहराई से पढ़ना है। These are the fundamental things of Christianity. आप लोग का जीवन में स्थापना या सबसे पहला खत्म यही होना है। Time is going ahead. Let us come back to Corinthians. टाइम अगर आपको और आगे जा रहा है, मैं कुरिन्थियों का वचनों में वापस आना चाहता Come हूँ। to Corinthians chapter 2. कुरिन्थियों अध्याय 2, That's the verse we were reading. वो जो वचन हम पढ़ रहा था, The Roman procession. वो जो रोमियों का उत्सव। So the first thing that I asked is, have God conquered you? Have you surrendered? Have you been defeated by the love, the grace of God? क्या मैंने आपको एक सवाल पूछा था, क्या परमेश्वर की प्यार में आप लोग गिर गया है या परमेश्वर उनकी प्यार से हमको हरा है या नहीं? आप लोग खुद को परख कर देखना। There we looked at the conversion, the call, and the empowerment of the Holy Spirit. वहाँ मन फिराना और पश्चाताप, ये पावर मिलना, सामर्थ्य मिलने, सब बातें हम सीख रहे थे। And second thing that we said, that it is a commitment to walk in the path of cross. दूसरी बातें हमने सीखा, वो क्रूस की और रास्ता पे चलने के लिए दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में होना As है। a conquered prisoner, a defeated prisoner, walking on the cross, on this path. हार मानते हुए एक दास की समान हम वो क्रूस की ओर चलना है। Now the third
thing and the most important thing. तीसरी बात और सबसे मुख्य बात ये It है, will shock you. You look at chapter 2 verse 14. आप लोगों को ये बहुत अचंभित बात होगा। वचन 2 का 14 वचन पढ़िए, You read 14 again now. 14 और एक बार पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। Listen again. अच्छे से सुनना। God is leading in this triumphal procession. परमेश्वर में इस जय का उत्सव में अगुवाई कर रहा है। So what is triumphal procession? We already understood, right? जय का उत्सव क्या है, आप लोग समझ लिया है। This is my death. वो मेरा मृत्यु है। It is that I was going some direction. The Lord met me. I have surrendered. I am walking towards death. मैंने एक दिशा में चल रहा था, परमेश्वर मुझे वहां मुझसे मुलाकात हुआ, वहां से मुझको वापस लेके आया। When I was reading these words, what shocked me is Paul is thanking God for that. ऐसा वाले के संदर्भ के लिए भी परमेश्वर को पौलुस ने धन्यवाद कर रहा है। You understand what I am saying? आप लोग समझ लिया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। In that story of Roman procession, that background I वो told. जय का उत्सव की कहानी में पृष्ठभूमि में आपको ये समझाया। So when that prisoner is being dragged, जब वो जो बंदीदार को वो लेके आ रहा था खींच के, usually what people have seen is या लोग ये देख पाता है उस समय in the literal procession when the defeated army general is coming, the defeated one will abuse the one who defeated them. जब ऐसा एक उत्सव का माहौल में लोग चल के आता है, जिन्होंने हराया उन्होंने जो हार माने हुए व्यक्ति के ऊपर मजाक किया, उसको ऐसा कट्टे पिटाने का बातें करता है। Yeah, this defeated army general also will curse him. Why you have defeated me? This guy, he will curse all bad words and all curse. ये जो सेनाधिपति हार मान कर आया है, वो भी इनका ऊपर विरोध बात करता है। Yeah, he will give all the curses upon us. ये जो श्राप भी देता है उसकी Oh, let this Roman Empire perish. वो बताता है रोमिया सब लोग नष्ट होने पाए। Let this army general go to hell. ये जो सेनाधिपति नरक में जाने पाए। Let all get destroyed. Let all the people go to hell. ये सब लोग नरक में जाने पाए। Then he will keep on cursing. Let disaster come. This kind of cursing will happen. ये ऐसा बनेगा, उन लोगों के जीवन में श्राप आने पाए, नष्ट होने पाए। Because they are humiliated. क्योंकि वो लोग ऐसा संदर्भ में है। सही है ना? But Paul being defeated is not giving curse to the one who defeated. पौल हार मानने के बाद भी ऐसा किसी को ऊपर श्राप नहीं करता है। But he is giving thanks to the one who defeated. वो ये बताना चाहता है जिन्होंने उनको हराया उनको धन्यवाद करता है। That is the paradox. That is the contradiction in the verse. वही विरोधी और वही बातें हम वचन में देख सकता है इस सोच में। Usually we can celebrate only victory. जब हम पास या विजय होता है तब हम मनाता है। But Paul is celebrating his defeat. उनका हार मानने का अनुभव को भी पौलुस एक उत्सव के समान लेता है। Thank you, Lord, for defeating me. धन्यवाद परमेश्वर, मुझे आपने हराया। Is that not what Christians are doing? हम भी वही कर रहे हैं ना। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको क्या किया? हरा दिया। But we are grateful to the Lord. Lord, thank you for saving us. परमेश्वर आप मुझे हराया, आपको कृपा मुझके हराया, इसलिए मैं बचा हूँ और मैं मुझको उद्धार मिला, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ। I was really shocked, wondering, like, what is the reason? मैं आश्चर्य होगा, ये कारण क्या होगा? In this verses, he says some more things. इस वचनों में और कुछ बातें उन्होंने हमको सिखाता है। Quickly look at it and I will close my words. हमने जल्दी से देखते हुए हम इस वचन को समाप्त करेंगे। So what I am trying to tell is, usually it has to be curse and abuse and sorrow, but on the contrary, Paul is grateful and rejoicing, celebrating his defeat. साधारण बात से हुआ तो ऐसा वाला संदर्भ में श्राप देना, ऐसा विरोध बात करने बातें चलता है। But the reason you see in that verse itself, in Jacob उत्सव में हमको, you look at the verse 14. लिए फिरता है। लिए फिरते continue next part. और अपने न्याय की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। Next verse. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध। In verse 14 he said the fragrance that comes. What is that word in 14? सुगंध, ज्ञान की सुगंध। ज्ञान की सुगंध. In 15 also it is ज्ञान की सुगंध. मसीह की सुगंध। मसीह की सुगंध. There are two things it says about fragrance and aroma of Christ. वहाँ दो बातें बताता है सुगंध के बारे में। He is thankful
God because वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है क्योंकि in this journey of death there is something else happening. ये जो मृत्यु के सफर में और कुछ बातें भी होता There है, is aroma, there is fragrance. वो जो सुगंध हमारा जीवन में होता है। In the background that I told, वो जो पृष्ठभूमि हम सीख रहे थे, when the army general is leading the procession, वो जो सेनाधिपति वो पूरा उत्सव को लेके आता है, there is incense burning. What is incense? वहाँ कुछ सुगंध द्रव्य पदार्थों को जलाते हुए लेके आता है। Yeah, when you go on there will be air is filled with वो सुगंध द्रव्यों का खुशबू पूरा जगह पे फैलाता है। and on the road there are flowers put on the वो road. जो आने वाला सड़कों पे फूलों को डालता है। So Paul is being dragged, army general is leading. When the army general is leading, the foot of the horses will trample on the flower, and when the flower is trampled, the smell of the flower. वो जो फूल और रोड सड़कों पे जाता है, घोड़ों का पैरों की वजह से उसका ऊपर दबाया जाएगा, तब वो फूलों का खुशबू वो पूरा जगह में So the फैलाता full है। air is filled with smell. वो जो हवा में पूरा वो सुगंध से भर जाता है। So the people of Rome, when the procession is coming, they will be, the smell is the celebration smell. वो जो रोम में आने वाला लोग और जो उत्सव आने का समय वहाँ जो खुशबू होगा बहुत उत्सव का खुशबू It is the smell of victory and life. वो विजय का सुगंध ऐसा होगा। But the person who is being defeated and dragged, for him the smell is what? It is the smell of death. वो जो व्यक्ति हार मान के आ रहा है उनके लिए सुगंध मृत्यु का सुगंध होगा। है ना? At the end of this journey, this person will be defeated and killed. क्योंकि इस सफर के अंत में उनको मारा जाएगा, इसलिए उनको सुगंध मृत्यु का सुगंध है। But Paul is changing that. पौलुस ने वो बातों को पलट लेता है। Paul is saying, in this journey of procession that Lord is leading us, ये जो उत्सव ये विजय का उत्सव जो परमेश्वर हमें चलाता है, we are spreading an aroma. हम भी एक सुगंध को फैलाता है। And that smell is life for us who believe. वो जो सुगंध है हमारे लिए जीवन की सुगंध But है। for those who do not believe, for you it is the smell of death. जो लोग विश्वास नहीं करता है उनके लिए मृत्यु का सुगंध है। ये बड़े से बड़े प्रेरित, the super apostle said that Paul is smelling death. You look at his body, he is going weak. वो अभी मरने वाला है. There is smell of death in Paul. But Paul is saying, for me it is not smell of death. For you it will be a smell of death. और जो बड़े-बड़े प्रेरित लोग पौलुस को देखकर बोला ये शरीर में कमजोर है, मृत्यु की किनारे में है। पौलुस इनको बताना चाहता है मेरे लिए जो अवस्था है सुगंध की अवस्था है। मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों का ऐसा नहीं है, आपके लिए ही सुगंध मृत्यु का सुगंध जैसा लगेगा। This sugandh of Christ, the aroma of Christ is actually talking about the gospel message. ये मसीह की सुगंध है, सुसमाचार का महत्व के बारे में समझाता You है। know what? When you are led on the path of death, ये हमको मृत्यु के रास्ते पे लेके चलता है। all of you, each of you are given the message, given a message of the gospel. आप सबके हाथों में सुसमाचार का संदेश दिया गया है। You know what is the greatness of that message? वो संदेश का महत्व क्या है आपको पता है? That message decides the destiny of the hearers. वो जो संदेश है आप लोगों का जो सुनने वाले लोगों का लक्ष्य को बताता है। You understand? You shared the gospel to a person. हम किसी को सुसमाचार बताया, That person said, "Go with your gospel. I don't want your gospel." वो बताया तू तेरा सुसमाचार लेके चलो करके हमारे ऊपर गुस्सा करेगा। किसका नुकसान होगा? हमको कुछ नुकसान नहीं है। वो भी उसका नुकसान है। किसकी नुकसान है? समझ में आ रहा है भाई? You go to ministry, people are get out from here. इधर से जाओ, हमको नहीं चाहिए। आप लोग सेवा में जाने के समय बोलेगा इधर से उठ के जाओ, हमको नहीं चाहिए, तू चले जाओ। Who is the loser? They are the loser because that will be a smell of death. क्योंकि उनके लिए वो सुगंध मृत्यु का है। If you accept, that will be life. अगर मान लिया तो स्वीकार किया तो आपका लाइफ की So सुगंध the life and death is in the message that you will carry. आपका मृत्यु और जिंदगी और जीवन या मृत्यु ये है आपका संदेश का अंदर को You understand the privilege that you are getting as you go in this journey? आपको मिले हुए अनुग्रह क्या है आपको समझ आया होगा इस Verse सफर में। 16, the last part, you look at verse 16, last part. 16 Who is sufficient for these things? इन बातों के लिए कौन योग्य है? भला इन बातों के लिए योग्य कौन है? You understand the greatest? Paul is saying he is wondering. I have been conquered, I have been taken as a slave, but this great privilege of sharing the gospel. पौलुस बताता है मुझे हराया है, मुझे बंदी बन के लेके आया है, फिर भी सुसमाचार के संदेश किसके लिए अच्छा लगेगा? Dear brothers, do you understand the
privilege of what you are being given. आपको जो मिले हुए जो बातें जो वो जो आज से अनुग्रह की बातें का महत्व क्या है आपको समझ आया? It is deciding the destiny of the people. क्योंकि लोगों का लक्ष्य को हम बता सकता I है। will read the last verse and I will conclude my words. 17 वचन पढ़ के मैंने समाप्त करना चाहता Read हूँ। verse 17, 1:17. 17 का पहला भाग पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर उन बहुतों कौन है? बड़े बड़े Yes, good. I'm happy for you. Yes, उन बहुतों मतलब Paul is alone. The majority is saying something else. उन बहुतों करके लिखा है पौलुस अभी अकेला है, बहुत लोग प्रेरित लोग That is what I हैं। said in the beginning. I will be alone, or we who preach these things will be alone. The majority will be saying something else. इसलिए मैंने आपको ये समझा पहले ही, ये जो प्रचार करने वाले लोग बहुत कम होगा या अकेला होगा, बाहर बाद में जो लोग होगा वो लोग बहुत ऐसे है। Biblical is not popular. Popular is not biblical. जो बाइबल के अनुसार है वो फेमस नहीं हुआ, वह नहीं फैलाता है ज्यादा, जो फैलाता है वो बाइबल के अनुसार नहीं That's है। what Paul also saying. उन बहुतों, oh the बड़े big people. What they are doing? पढ़िए. जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ, वो लोग क्या करता है? परमेश्वर को वचन को मिलावट करता है। हाँ. परंतु मन की सच्चाई से और Listen to it. In English, the word used is we are not peddlers. Hindi it is मिलावट. मिलावट। Okay. मिलावट, you understand what is मिलावट? You are selling milk. Okay. करते एक लीटर का बॉटल में आधा लीटर मिल्क और आधा पानी। और आपको दे दिया, सुनो अच्छा दूध है, 1 लीटर है, पियो और आपका कितना, यू विल बी वेरी हेल्थी, दे दिया। आप सोचा कि 1 लीटर है, लेकिन कितना था? This is मिलावट. In English the word is peddler. The right meaning of the word is peddler. Peddler in the north, even in Kerala also you can see on the करेक्ट बताया तो हम बोलते हैं गलती किया। ये रोड ले गलती नहीं, गलती किया। ये रोड ले fruit, they will sell the fruits on the road. ये मिट्टी को कोई कितने लोग वो जो छोटा गाड़ी में फल को बेचने वाला होगा। हाँ, 2 किलो 100 देखा है? On the road they will just sell this fruit. फ्रूट जो फल होता है ना, रोड में बेचते हुए 2 किलो इतना करके बोल जाता है। So when you go to this vendor, this person who sells, there will be so many fruits and he will, for example, if it is watermelon, when you go, you will see that one watermelon will be artistically cut, beautifully cut, and they will say, आपको टेस्ट करना है, सर देखिए सर, he will give you a piece. उदाहरण ऐसा है, अगर आप तरबूजा लेने के लिए गया तो पहले से काट के रखेगा, उसका पीस आपको खिला के बोलेगा बहुत अच्छा है सर करके। So when you will eat, it will be very tasty. Wow! आप वो खाएगा बहुत अच्छा लगेगा। So you will tell her, give me 2 watermelon. आप बोलेगा मुझे 2 ले दे दो। So you took 2 and gave to your hostel. 2 लेकर आप हॉस्टल में आ गए। You cut and you eat, there is no taste. आप काट के देगा कोई टेस्ट नहीं। Because the one he showed is only tasty. जो आपको पहले दिखाया वही टेस्टी है। Orange also like this. He will so beautiful orange, but what you will get will not be good. ऑरेंज भी ऐसा है, पहला अच्छा वाला दिखाएगा, आपको जो मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। Showing is like so good. दिखाने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है. You understand? That is what they are doing. But Paul is saying, we preach Christ crucified. पौलुस बताता है जो क्रूसित हुआ वो मसीह के बारे में हमने प्रचार We करना are not showing anything outward by our lifestyle. हमारा जीवन की ओर बाहरी रूप से हम कुछ नहीं दिखाना चाहता है। The super apostles are showing so many things. बड़े-बड़े प्रेरित लोग बहुत कुछ दिखाता है They are आपको। mixing and giving you. आप लोगों को वो मिलापन करके मिलाते हुए बहुत सारी चीज आपको दे रहा है। But what we are preaching is the truth of God's word. फिर भी आपको आपके सामने हम जो कर रहा है वो सच्चा सुसमाचार है। That is what he said, as we have been sent from God and standing in His presence. इसलिए हम वो बताता है हम परमेश्वर की उपस्थिति जानकर और मसीह में ये सब कुछ बोलता है। One more thing and I will close my और एक words. बात बताता हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Why people are doing milavat? Why is people adulterating the message? क्यों लोग इसमें विचारों बातें या मिलावट की बातों करता है? 8 liter, saying 1 liter, if I give you half liter, I will have benefit of half liter. अगर आपको वही 1 लीटर का आधा दिया तो मेरा भी को कुछ लाभ होगा। Yeah, if I mix the message, I will have benefit. क्योंकि वो संदेश को मिलावट किया तो मुझे भी लाभ मिलेगा। Dear friends, if you will mix
the message and preach, you will become a super apostle. अगर आप भी संदेश को मिलावट करके प्रचार करके देखने, आप भी बड़े आपको प्रेरित बन सकता But है। if you say the truth of the message, फिर भी आप संदेश का सच्चाई प्रचार किया तो people will mock you. अरे यार, this is good for nothing. लोग आपको मजाक करेगा, अरे ये कुछ काम का नहीं है। That is what Paul was mocked by people. इसलिए पौलुस को लोग ऐसा ही मजाक कर रहा है। Let me close my words. This is already too much for you. ये आप लोगों के लिए बहुत भारी मिला है, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। This is Christian ministry, my dear friend. ये है सच्चा मसीह सेवकाई मेरा दोस्त। It is not miraculous stardom. ये बहुत बड़ा आदमी बनना या फेमस बनने का कहानी You नहीं read है। the epistles of Paul. ये आप लोग पौलुस का पत्रियों को पढ़ के देखिए। Paul doesn't say about big miracles he did. पौलुस ने बड़ा चमत्कारी बात उन्होंने किया, उसके बारे में नहीं In बताया। the Corinthians itself, we didn't read those portions, but Paul gives an elaborate explanation of the sufferings he had. उनका जीवन में जितना सफरिंग या सताव हुआ या उनकी बारे में वो विवरण किया। Paul is saying that suffering is the mark of my apostleship. इसलिए उन्होंने बताना चाहता है वो जो सताव है, वो जो पीड़ा है, मेरा प्रेरित होने का एक बड़ा काम है। As I close my words, समाप्त करने के समय में this picture, I think this is a very easy message to remember. आप लोगों को बहुत अच्छा से याद होगा आज का संदेश, Because you just remember that story. That's why I took time to explain that. क्योंकि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगा। वो पहला वाला जो मैंने बताया, The journey, the victory journey, the procession that's happening in वो Rome. विजयी का उत्सव का कहानी अच्छे से याद रखिए। God is the army general who has won the battle. परमेश्वर ये हमारा सेनाधिपति जो विजय बात प्राप्त किया है। He is the one who should be glorified. He is the one who should get all the glory. आदर और महिमा सब उनको ही मिलना है। And you are using your life as the prisoners captivated, giving away the life for the glory of God. हम भी वो हार मानते हुए और बंधुआई में लेके आए हुए वो सेनाधिपति और लोगों के समान हम सोचना है हमारे बारे में। We give our life for the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन को देना है। As I was preparing this message, there was one prayer that I saw. मैंने संदेश प्रिपेयर करने का तैयार करने के समय एक प्रार्थना को मैंने It देखा। is a prayer by a missionary. एक सेवकाई करने वाला व्यक्ति का प्रार्थना है। The prayer is like this. प्रार्थना ऐसा है, Here am I. मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, Send me. मुझे भेजो। Send me to the ends of the world. यहाँ हूँ, यहाँ मैं हूँ, मुझे भेजो, मुझे पृथ्वी का अंत तक भेजो, मुझे जंगली क्रूर बर्बर लोगों के पास भेजो, मुझे पृथ्वी पर जो कुछ भी आराम कहा जाता है उससे भेजो, मुझे यहाँ की मृत्यु के पास भी भेजो, यदि यह केवल उसकी सेवा में हो और आपकी राज्य को बढ़ावा देने के लिए हो। What is that? Send me from everything that is called comfort on this. इस दुनिया में जितना कंफर्ट की बात है, अच्छे बात है, प्रभु वहाँ से मुझे भेजो। Can we take that? Can we pray like that? क्या आप लोग ऐसा प्रार्थना कर सकता है? Dear friends, that is ministry. मेरा प्रियो वही है सेवकाई। Ministry is not making your life comfortable. आपका जिंदगी को, आप जीवन को कंफर्ट करना वो नहीं है। Ministry is not getting anything. सब कुछ मिलने वाला कहानी नहीं है सेवकाई, Giving your life. देने वाला कहानी है, जिंदगी देने वाला Can you कहानी। stand once in God's presence? आप लोग क्या खड़े हो सकता है? Just close your eyes for a moment. आप लोग आंखों बंद करना थोड़ी समय। The word that we meditate. तो आप लोग अभी वचन